અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી ભારત પર ટેરિફ બોમ્બ ફોડ્યો છે। હવે ભારત પર વધારાનો 25% ટેરિફ લાદવાની જાહેરાત કરી છે। અગાઉ જાહેર કરાયેલો 25% ટેરિફ અમલમાં આવે એના એક દિવસ પહેલા જ ટ્રમ્પે મૂર્ખતાપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે। વધારાનો 25% ટેરિફ 27 ઓગસ્ટથી લાગુ થશે, જેના કારણે અમેરિકાનો ભારત પરનો જે કુલ ટેરિફ છે તે હવે 50% થઈ જવાનો છે। ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું કહેવું છે કે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાને કારણે ભારત પર 25% વધારાનો ટેરિફ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે ભારતે સહેજ પણ વિલંબ કર્યા વિના ટ્રમ્પને જવાબ આપ્યો છે અને કહ્યું છે કે અમેરિકાનું આ પગલું અયોગ્ય, અન્યાયી અને અતાર્કિક છે। વાત કંઈક એવી લાગી રહી છે કે ટ્રમ્પને દુખે છે પેટમાં અને કૂટે છે માથું। પરોક્ષ રીતે ટ્રમ્પની ઈચ્છા એવી છે કે ભારત અને રશિયાની ગાઢ મિત્રતાનો અંત આવે, ભારત રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદી બંધ કરી દે। એ જ કારણ છે કે ટ્રમ્પ ભારત માટે મન ફાવે એવા નિર્ણયો લઈ રહ્યા છે। વધારાના ટેરિફનો નિર્ણય પણ એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે ભારતના રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર રશિયાની મુલાકાતે છે। રશિયાને નબળું પાડવાના પ્રયાસમાં ટ્રમ્પ ભારતને ટાર્ગેટ કરી રહ્યા છે। અમેરિકા પોતાની શરતો પર ભારત સાથે વેપાર કરાર ઈચ્છે છે। ટ્રમ્પ ઈચ્છે છે કે કૃષિ અને ડેરી બજારમાં અમેરિકા ભારતમાં મુક્તપણે કોઈ રોકટોક વિના વેપાર કરી શકે। જો કે ભારત એવું કરવા તૈયાર નથી, કારણ કે ભારત પોતાના નાના ખેડૂતોના ફાયદા માટે અમેરિકાના મનસ્વી વેપાર કરારને સ્વીકારવા માટે તૈયાર નથી। ભારત એવું ઈચ્છતું નથી કે આવા વેપાર કરારથી ભારતના નાના ખેડૂતો અને ઉદ્યોગપતિઓને નુકસાન થાય। એટલા માટે જ ટ્રમ્પે ટેરિફ વોર શરૂ કરીને ભારતને ઉશ્કેરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, જેનો ખુદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જવાબ પણ આપ્યો છે। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સત્તામાં આવ્યા ત્યારથી તેઓ રશિયા યુક્રેન યુદ્ધને સમાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। તેમણે બધું જ અજમાવ્યું, પરંતુ સફળ થયા નથી। આવી સ્થિતિમાં મજબૂરીથી તેમણે રશિયાને તોડવા માટે ભારતને પોતાનું શસ્ત્ર બનાવ્યું છે। બધાને ખબર છે કે ભારતના મિત્ર રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદે છે અને ટ્રમ્પ માને છે કે રશિયા તેલમાંથી થતી આવકનો ઉપયોગ યુદ્ધ માટે કરી રહ્યું છે। આ જ કારણ છે કે ટ્રમ્પને લાગે છે કે જો ભારત રશિયા પાસેથી તેલ નહીં ખરીદે તો તે તૂટી જશે અને પુતિન યુદ્ધમાં શરણાગતિ સ્વીકારશે। પરંતુ વાસ્તવમાં આવું કંઈ થઈ રહ્યું નથી। ભારતે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તે તેની જરૂરિયાતો અનુસાર રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદે છે। નિષ્ણાંતો માની રહ્યા છે કે ટ્રમ્પના મનસ્વી અને મૂર્ખતાપૂર્ણ નિર્ણયથી ભારતમાં વ્યાપક અસર થઈ શકે છે। કાપડ, દરિયાઈ ઉત્પાદનો અને ચામડાની નિકાસ જેવા ક્ષેત્રો પર માઠી અસર થઈ શકે છે। ટેરિફથી જે ક્ષેત્રો પ્રભાવિત થશે તેમાં કાપડ ઉદ્યોગ, હીરા જવેરાત, ઝીંગા, ચામડું અને ફૂટવેર, પશુ ઉત્પાદનો, રસાયણો, વીજળી તેમજ યાંત્રિક મશીનરી સહિતના ઉદ્યોગો સામેલ છે। નિકાસકારોના મતે આ પગલાથી ભારતની અમેરિકામાં થતી 86 અબજ ડોલરની નિકાસ પર ગંભીર અસર પડશે। આ ટેરિફ વિવિધ પ્રકારની દવાઓ, ઉર્જા ઉત્પાદનો જેવા કે ક્રૂડ ઓઇલ, રિફાઇન્ડ ઈંધણ, કુદરતી ગેસ, કોલસો અને વીજળી જેવા મહત્વપૂર્ણ ખનિજો અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ તેમજ સેमीकंडक्टर्स पर लागू नहीं થાય। मैं अगर हिंदी में बोलूं तो बेवकूफ़ी भरा है। देखिए, आप जो हैं, यू शुड नॉट कट द नोज टू स्पाइट द फेस, जैसा कहते हैं। तो आपने, जब आप नेगोशिएशन कर रहे हैं कि ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है और एक हद तक हम लोग पहुंच गए थे, आपको पसंद नहीं आया, द
जो लोग करने वाले थे दोबारा पहुंच गए। तो आप 25% ऑटोनॉमस और यूनिलैटरली आप ड्यूटी इम्पोज करते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि आप रशिया से ले रहे हैं ऑयल। अगर आप सोचें कि अमेरिका ने खुद कहा था भारत को कि अच्छा है भारत वहां से खरीदता है ऑयल ताकि ऑयल प्राइसेस इन द मार्केट स्टेबल रहें। अब आप नई तरह से उस बात को सोच रहे हैं और ये नहीं देख रहे हैं कि लगभग 51% रशियन गैस जो है वो जा रही है यूरोप को। अभी भी $23 बिलियन उन्होंने दिया है। यूएसए ने $2 बिलियन का सामान रशिया से खरीदा है और खरीदते जा रहे हैं, चाहे वो रेयर अर्थ्स हों या कुछ और चीजें हों। तो उनका लेवरेज वहां तो है नहीं। तो वो चाहे ब्राजील है, इंडिया है, चाइना है, इन सब कंट्रीज के ऊपर में ये कोशिश कर रहे हैं कि बड़े से बड़ा वो ये ट्रेड करें। मेरा मानना ये है कि बेबुनियाद बात इसलिए है कि ठीक है आप एक बड़ी पावर हैं, बड़ी है, लेकिन भारत को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, हमें अपने ऊपर एक सप्लाई चेन का सेंटर बनना पड़ेगा और तभी हम नेगोशिएट कर सकते हैं उसमें। एक और मुझको लगता है कभी कभी कि शायद वेस्टर्न कंट्रीज ये नहीं चाहते हैं कि भारत एक बड़ी ताकत बन के उभरे। लेकिन देखिए हिस्ट्री तो है, रिपीट करती है बार बार ना। एक टाइम पे हम थे 27% दुनिया के ग्लोबल वेल्थ का हिस्सा थे, जीडीपी का, तो दोबारा फिर बनेंगे। तो ये चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज पावर्स, दीज लीडर्स, इंडिया विल कंटिन्यू। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बट इंडिया ने और बहुत सारे ऐसे मुकाम देखे हैं अपनी जर्नी में और मैं समझता हूं इट्स नॉट अ बिग डील। इससे हमारे कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे फार्मा, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऐसे सेक्टर्स के ऊपर एक धक्का लगेगा। लेकिन इससे हमको चिंतित होना है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट्स का हिस्सा जीडीपी में एक छोटा अनुपात है, तकरीबन 18% के आसपास है। इंडिया के बारे में बार बार भारत के बारे में हम कहते हैं लार्जली डोमेस्टिकली ड्रिवन इकोनॉमी है, जिसका मतलब हम आंतरिक रूप से इतने मजबूत हैं कि आंतरिक संरचना हमारी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस फैसले से हमारा अनुमान है कि जीडीपी पे करीब 20 बेसिस पॉइंट्स का धक्का लगेगा और एक्सपोर्ट्स पे 50 से 60 बेसिस पॉइंट्स का धक्का लग सकता है। इससे रोजगारी पे भी बुरा असर पड़ेगा। ऐसे हालात में हमको एक सोच समझ के कदम उठाना है, कुछ जवाब भी देना होगा, लेकिन हमारे लिए आवश्यक है कि हम एक्सपोर्ट्स के सोर्सेस का विकेंद्रीकरण करें, एक फॉरवर्ड लुकिंग एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाएं जिसमें सेल्फ रिलायंस के साथ साथ ग्लोबल इंटीग्रेशन पे भी जोर हो, टैरिफ्स को रैशनलाइज करना, सिंप्लीफाई करना और कुछ ऐसी जगह में कम भी किया जा सकता है जहां पर हमारी आंतरिक स्थिति, डोमेस्टिक कैपेबिलिटी बहुत मजबूत नहीं हो। मुझे एक बहुत मशहूर हिंदी कवि प्रदीप की लाइनें याद आती हैं, जिसमें उन्होंने कहा था तकरीबन आज से 50-60 साल पहले, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। हमने कई बार इस तरह के तूफानों का सामना किया। 2008 में और के अक्टूबर में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। 2019-20 में हमने पैंडेमिक की भी, कोविड-19 पैंडेमिक की विभीषिका भी झेली है। तो हमारा मानना है इससे हमको धक्का जरूर लगेगा, लेकिन हम इससे भी मजबूती से उभरेंगे। मुझे लगता है कि अमेरिकन कंज्यूमर प्रोटेस्ट करना शुरू करेगा, क्योंकि देखिए अब जो टूरिस्ट है अमेरिका में, पहले कनाडा का टूरिस्ट आता था, पहले इन्होंने कनाडा को अपसेट करा तो कनाडा का टूरिस्ट आना बंद हो गया। यूरोप को काफ़ी अपसेट करा, यूरोपियन यूनियन से टूरिस्ट आना बंद हो गया। और अमेरिका की, यूरोप की वैसे भी यूक्रेन वॉर की वजह से कंडीशन थोड़ी खस्ता है, तो टूरिस्ट इंडिया से भी आना बंद हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का वीज़ा ही वैसे 1 साल तक की वेटिंग है और इंडियन टूरिस्ट भी अब वहाँ जाएगा, क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो टूरिज्म और बिजनेस कंबाइन करता है। और अगर अमेरिका में बिजनेस नहीं रहेगा तो इंडिया, वो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो हमें नई मार्केट्स ढूंढनी पड़ेंगी। साउथ अमेरिका की मार्केट है, अफ्रीका की मार्केट है, जापान की मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट है, आसियन कंट्रीज़ की मार्केट्स हैं, और हमें चाइना से भी और रशिया से भी अपनी ट्रेड बढ़ानी पड़ेगी। तो यूके से अभी हमने एक
FTA फेवरेबल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है, तो मुझे लगता है कि ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन दुनिया की इस टाइम बदल रही है और इसमें भारत का नुकसान तो होगा ही होगा एक्सपोर्ट्स का, बट हमारे से ज़्यादा अमेरिका का और अमेरिका की गुडविल का नुकसान हो रहा है। टैरिफ का शॉर्ट टर्म फर्क पड़ेगा, ठीक है, पर लॉन्ग टर्म हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, हमें और मार्केट्स मिल जाएंगी। और दुनिया में 200 से ऊपर कंट्रीज हैं, अमेरिका एक ही कंट्री है। ठीक है, अमेरिका की इकोनॉमी हमारा लार्जेस्ट इंपोर्टर है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम कंप्लीटली डिपेंडेंट रहेंगे अमेरिका के ऊपर। अमेरिका अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, बिकॉज अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड में, वो टैरिफ से वो अपना इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम करता जा रहा है।